Good morning, all. I am Ashfaq Qureshi on behalf of Electrical Engineering Department, Government Polytechnic Palanpur. Welcomes all of you, and especially I welcome to our guest, Dr. Mihir Bole sir. Dr. Mihir Bole sir is Senior Faculty of Interdisciplinary Design Studies and Discipline Lead of PG Science and Liberal Arts at National Institute of Design, PG Campus, Gandhinagar. He teaches various subjects of humanities and social sciences in the context of design such as comparative aesthetics, narrative theories, semiotics, Indian society, public policy and design, behavioral psychology, material culture, design and urbanization, and research methodology, etc. Dr. Mihir Bole sir holds PhD in social science from SAPT University Ahmedabad and Master in Humanities in English literature from Patna University. His cross-disciplinary doctoral research covers the issue of caste conflict and social justice. He has extensively written and published in various national and international publications, books, and research journals on the number of issues, and has also taught and delivered lecture at premium foreign and Indian institutes such as University of Applied Science, Northwestern Switzerland, National University of Singapore, IIT JNU, Delhi University, Jindal Global University, to the name few. Behind teaching, he has experience of guiding doctoral research in interdisciplinary area of media studies, management and design. Dr. Bole is an author too. He has 3 books in his credit, namely Caste Conflict and Social Justice, The Discourse and Design, The Design Samvad in Hindi, Young Designers 2010. He has also edited NID's design magazine Design Plus for nearly 10 years as its founding editor. He has represented NID and India on various international conferences on design and culture and has also contributed to many important design projects in the area of communication, strategy and exhibition museum design. Besides teaching, research and writing, he has also worked on different professional projects in the area of design and communication strategy of Government of Bihar, Tirupati Tirumala Dev Satnam Trust, among other. His present research involvement is the area of public policy and design, wherein he is studying how the intervention of design and innovation can transform urban and healthcare sector. We are very honored to have you, sir. Welcome you, sir. Over to you, Dr. Bole, sir. Thank you very much. Good morning, नमस्कार, केम छो? સૌપ્રથમ હું પ્રિન્સિપલ ડાબી સાહેબ, તમારા HOD માધવીબેન શાહ અને જનાબ અશફાક કુરેશી સાહેબનો હાર્દિક આભાર માનું છું. તમે આપેલી તક માટે તમારો હાર્દિક આભાર. આજે તમારા બધા વચ્ચે રહીને મને અત્યંત પ્રસન્નતા થાય છે. This is a wonderful occasion to connect with all of you, and I welcome you all in this session from National Institute of Design, the PG campus, Gandhinagar. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे आज हम लोग थोड़ी देर आपसे के साथ चर्चा करेंगे. पहले तो मुझे ये बता दें कि मैं विजिबल हूँ आपके माइक, आपके स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा शायद ये नहीं सर, आपका दिखाई नहीं दे रहा, आपका कैमरा बंद है सर. कैमरा बंद है, तो मुझे कैमरा ऑफ और ये फिर मैंने किया ऑन, लेकिन ये कैमरा ऑन हो नहीं रहा है. मुझे इसके लिए फिर किसी को बुलाना पड़ेगा. तो क्या आपके साइड से कैमरा ऑन हो सकता है? अशफाक, आप कुछ कर सकते हैं उधर से? नहीं सर, कैमरा पार्टिसिपेंट के साइड से ही ऑन है. ये कुछ समस्या है. स्क्रीन आप शेयर कर सकते हो. हाँ, स्क्रीन तो मैं शेयर करूंगा. मैं देखता हूँ शायद स्क्रीन शेयर करने से वो ऑन हो जाए, लेकिन कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. गौरव, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ, जस्ट मिनट गौरव, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. हाँ, क्लिक कर रहा हूँ मैं, पर ये देखो ना, ये क्लिक करने से ये हो जाता है, चेकआउट हो जाता है, बंद हो जाता है, कैमरा ऑफ हो जाता है.
आइकन पे ऑन दिखा रहा है पर ये ऑन हो नहीं रहा है, तो कहीं और से कुछ करना पड़ेगा। जरा एक मिनट देखो ना, या अगर वो रवि हो तो उसको। ठीक है, जब तक वो हमारे आईटी सपोर्ट वाले आते हैं तब तक हम लोग अपनी बात को जारी रख सकते हैं। आप मेरी आवाज़ तो सुन सकते हैं? Yes, perfect, sir. Okay, thank you. So it's a very interesting topic that we're going to discuss today, and it is very relevant as well because जो हमारी अभी की जो लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, बड़े लंबे समय के बाद हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करने की बात सोची। करीब करीब मोटे तौर पे अगर कहें तो 3 डिकेड्स हो गए, उसके 3 दशक हो गए। उसके बाद हमने उस पॉलिसी को रिविजिट किया और उसको फिर से रिवाइज करने की बात की। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका जो एस्पेक्ट था, वो एस्पेक्ट था मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। और जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो मल्टीडिसिप्लिनरी की बात अकेले नहीं करते, उसके साथ 3 एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके। एक मल्टीडिसिप्लिनरी, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी और तीसरा क्रॉस डिसिप्लिनरी। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। अब सुनने में बड़ा थ्योरेटिकल लगता है और शायद इनिशियली आप सारे लोगों को लगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि आज का जो एजुकेशन है वो वास्तव में एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट के अंदर में एजुकेशन को ग्रो करना है। उसकी दिशा जो है इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी हो गई है। अब वो सिर्फ अपने डिसिप्लिन में रह के आप किसी पढ़ाई को सही मायने में पूरा नहीं कर सकते। आप एक विषय को तो जान सकते हैं लेकिन विषय के एप्लीकेशन को नहीं समझ पाते हैं। और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यही थी कि हम उसको इतना ज़्यादा हमने थ्योरेटिकल बना दिया कि उसके एप्लीकेशन के साइड से हम कहीं से हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट तो हमने बहुत सीख लिए, हमने इंजीनियरिंग भी सीख ली, हमने फिज़िक्स भी सीख लिया, हमने सोशल साइंस भी सीख लिया, ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। लेकिन ये इनका आपस में कनेक्शन क्या है और ये क्यों रेलिवेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, और पढ़ने के बाद हम इसका इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से कर पाते हैं, या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको कि इस पॉलिसी में एड्रेस करने की कोशिश की गई है। आप 1 मिनट प्लीज़ वेट करें, मैं ज़रा इसको कनेक्ट करने कुल देखो तो ये क्या हो रहा है, ये वीडियो इसका ऑन नहीं हो रहा है इसमें। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है, माइक्रो जूम। यहाँ लाइट जलनी चाहिए ना, वो जल नहीं रहा है। आप 2 मिनट प्लीज काइंडली बेयर विथ मी, मैं इसको जरा। जी सर, कोई बात नहीं। तो चलना चाहिए, यहाँ से चलना तो चाहिए, पर ये वीडियो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इसका। कमाल है।
ये जो तीन तीन डॉट है, इस पे कुछ है क्या ऑप्शन? टर्न ऑफ। सॉरी, मुझे लगता है कुछ सॉफ्टवेयर इशू है, तो वीडियो तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन जी सर, कोई बहरहाल बात नहीं। चलिए, आप लोगों से बातचीत हो रही, आप लोग मुझे सुन सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन रहेगा तो हम इस पर बातें कर लेंगे। ओके सर, तो थैंक यू। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब ये जो एक जो एस्पेक्ट है कि सब्जेक्ट्स तो हम बहुत सारे सीख लेते हैं, उसमें स्पेशलाइज भी कर जाते हैं, पर उसके इंटरकनेक्शंस हम नहीं ढूंढ पाते कि वो किस तरीके से किन चीज़ों के साथ उसका जुड़ाव है, उसका कनेक्शन है। तो इस पे पहली बार इस जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चर्चा की गई कि हम एक मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हर डिसिप्लिन एक दूसरे की ताकत को, उसके स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेसेस को, या जो भी उसका जो अपना उसकी बाउंड्री है उसको समझ सके, एंड देन हाउ दे कैन कम टुगेदर टू सॉल्व आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारे पढ़ने का उद्देश्य तो वास्तव में ये दो होता है। एक उद्देश्य ये होता है कि आप सिर्फ यू अचीव नॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एंड अल्टीमेटली टू अचीव व्हाट इज कॉल्ड विजडम। आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वो एक पहलू है। और दूसरा पहलू जो है, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढना चाहते हैं। वरना इतने सारे सब्जेक्ट्स जो आज हमारे सामने में है, ह्यूमैनिटी के, सोशल साइंसेस के, लाइफ साइंसेस के, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स आए कहाँ से, किस लिए आए? इसलिए आए कि ये कुछ ना कुछ समाज की ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने एक स्पेशलाइजेशन, एक नए नज़रिए के साथ चीज़ों को देखना शुरू किया। तो ये पूरा उसका एक बैकड्रॉप है। उस बैकड्रॉप में कई सारे विषय विकसित हुए। टेक्नोलॉजी जिसके आप छात्र हैं, वो मुख्य रूप से साइंस का एक एक्सटेंशन है, एक अप्लाइड एक्सटेंशन है। टेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड एक्सटेंशन ऑफ साइंस, and which includes physics, which includes mathematics, which includes chemistry, which includes many other mathematics and so on and so forth. So इन सारी चीज़ों को मिला करके आपने जब अप्लाइड उसका एक डायमेंशन ढूंढने की कोशिश की, तो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, वो हमारे सामने में आ गया। इस किस्म से हमारे सब्जेक्ट्स खड़े होते रहे। पर हुआ ये कि लंबे समय में ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग अपने अपने डिसिप्लिन की बाउंड्रीज में बंध गए, यानी कि एक सीमा के अंदर में बंद करके वो काम करने लगे। सो इंजीनियरिंग डिड नॉट नो what are the concerns of social sciences, and social science was not concerned what engineering can do for it, and similarly humanity has absolutely no idea what is the meaning of life sciences and so on so forth. So ये सारे अपने अपने फील्ड में अलग अलग काम करने लगे। तो सॉल्यूशन जब हमको निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो इसमें एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा होता चला गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपको लेके आता हूं दूसरे एस्पेक्ट पे, जो कि नॉलेज से रिलेटेड है। हमारे एक जो हमारे कई सारे पुराण हैं, विष्णु पुराण उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। उसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक है, जिसको कि अक्सर आप कई यूनिवर्सिटीज के उनके इंसिग्निया पे, उनके जो सिंबल्स होते हैं, उनका जो मोटो होता है, उस पर ये लिखा आप पाएंगे।
तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यानया शिल्पनय पुणम, which means that is action which does not promote attachment. That is knowledge which liberates one from the bondage. यानी कि ज्ञान का जो उद्देश्य है वो आपको बंधन से मुक्ति दिलाना है। अब ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक बात कही गई है। इस फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट को हम एक बहुत प्रैक्टिकल उसके डायमेंशन में देखने की कोशिश करेंगे। कहता है कि नॉलेज, दैट इज नॉलेज विच लिबरेट्स वन फ्रॉम द बॉन्डेज, यानी कि आपको बंधन से मुक्त करता है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि जब ज्ञान की अलग अलग विषय जब हम खड़े करते गए तो हमने सबों को अलग अलग बंधन में बांध दिया। यानी कि इंजीनियरिंग को ये नहीं मालूम था कि ह्यूमैनिटीज़ के कंसर्न्स क्या हैं, ह्यूमैनिटीज़ को ये नहीं मालूम था कि सोशल साइंस के कंसर्न क्या हैं, सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा लाइफ साइंसेज में इंटरेस्टेड नहीं था। और इस तरीके से हमने इतने छोटे सेगमेंट्स खड़े कर दिए कि विषय तो हमने बहुत बढ़ा लिए, लेकिन ये सारे विषय अपने आप में अकेले अकेले अपनी अपनी लड़ाई लड़ गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वास्तव में जो एक मुद्दा होना चाहिए वो ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी का मुद्दा होना चाहिए, मानव एक मनुष्य के जो अधिकार हैं उसकी डिग्निटी का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन उस ह्यूमन राइट्स को भी हमने बच्चों के राइट्स अलग कर दिए, महिलाओं के राइट अलग कर दिए, फेमिनिज्म अलग कर दिया, बूढ़ों के अधिकार अलग कर दिए, सारा अलग 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 छितरा दिया हमने। इकट्ठा देखने की जो आदत थी हमारी, की जो ज़रूरत थी हमारी, उससे हम कहीं अलग हट गए। तो ये जो समस्या खड़ी हुई, इसकी वजह से कहीं भी एक जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि हम सिर्फ एक बहुत ही नैरो अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते थे, और प्रॉब्लम को बहुत नैरो अप्रोच के साथ एड्रेस करने की वजह से हमारा जो रिजल्ट निकलना चाहिए था वो वैसा रिजल्ट नहीं था जैसा होना चाहिए था। सो दिस इज द premise on which we would like to go further. Now, when we talk about interdisciplinary, first of all, there are two terms that one will have to keep in mind. One is it's a mix of two words. One is, the first part is inter, the second part is discipline. So inter and disciplinary. So what is inter and what is disciplinary? So first of all, we should try to understand what is the meaning of discipline. Discipline का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम समझ लें। डिसिप्लिन का मतलब एक अनुशासन भी होता है, इसमें शक नहीं है। पर डिसिप्लिन जिसकी हम बात करते हैं उसको कितने तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल इज अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लर्निंग और अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज ज्ञान का एक शाखा है, वो भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नो दैट regulates, define a subject in a particular and a specific manner. किसी विषय को एक खास और एक विशेष नजरिए से देखने के लिए जो हम अप्रोच डेवलप करते हैं वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन विच रिक्वायर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिगर, ट्रेनिंग एंड मेथड, यानी कि वो एक इस किस्म का विषय है जिसके लिए खास किस्म की मेहनत, खास किस्म के अप्रोच, खास किस्म की ट्रेनिंग और खास किस्म के मेथड की ज़रूरत होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग में आपके जो मेथड है वो सोशल साइंस वालों के मेथड नहीं है, जो सोशल साइंस वालों के मेथड हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के मेथड नहीं है, सबके अपने अपने मेथड हैं। तो वो एक डिसिप्लिन का मतलब वो होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है टू डेवलप अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ल्ड व्यू और अप्रोच टू नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि आप एक खास किस्म का दुनिया के देखने का एक नया नज़रिया, आपका एक खास विशेष नज़रिया आप तैयार करते हैं जब आप एक डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको दुनिया को देखने का जो नज़रिया दिया गया है वो एक खास किस्म का नज़रिया है जिसमें आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी मूल रूप से वो जो ट्रेनिंग है वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ट्रेनिंग है। आपकी ट्रेनिंग में आपको पोइट्री से कोई वास्ता नहीं है, नहीं बताया जाता। आपकी ट्रेनिंग में आपको म्यूज़िक के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। आपकी ट्रेनिंग में आपको लाइफ साइंसेस के बारे में नहीं बताया जाता है। और सिर्फ ये आपके साथ नहीं है, सारे दूसरे डिसिप्लिन, जहाँ भी डिसिप्लिन शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं उसके साथ यही समस्या, उसकी लिमिटेशन खड़ी होती है, यानी वो एक बाउंड्री के अंदर में बंध जाता है। उसके अपने अच्छे परिणाम भी होते हैं, उसके अपने बुरे परिणाम भी होते हैं। इन द सेंस
that when you want to have a micro level view of a problem, then the discipline, you have no option but to look at it from a disciplinary perspective. यानी कि जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहां कविता से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी से ही काम चलेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन समाज में के साथ करना है, समाज में टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक बहुत सारे पर्सपेक्टिव वहां पे आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे, और फिर बिना उन सारे प्रॉब्लम्स को समझे आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मूल रूप से डिजाइन में है, बीइंग फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, हम लोगों ने यही सीखा है और हम लोग यही सिखाने की कोशिश करते हैं। जो आमतौर पे लोग समझते हैं डिज़ाइन का मतलब है फाइन आर्ट्स और एस्थेटिक्स और पेंटिंग और वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें नहीं, वो नहीं है। डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जहाँ पे हम अलग अलग विषय के माध्यम से अलग अलग डिसिप्लिन्स को इकट्ठा करके किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब फिर एक और ये भी हो जाता है कि सपोर्ट्स टाइप ऑफ टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। यानी कि जो आपकी थ्योरी है वो हमारी थ्योरी नहीं है, सोशल साइंस वालों की थ्योरी नहीं है। आप जो जिस प्रोसीजर का पालन आप करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के लोग नहीं करते, तो ये स्पेसिफिक होता चला जाता है। और डिसिप्लिन डिफाइंस बाउंड्री about their material, method, concepts and their idea for truth and validity। यानी कि वो आप किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें डिसिप्लिन ही सिखाता है। तो डिसिप्लिन वास्तव में नॉलेज को, ज्ञान को डिसिप्लिन अनुशासित करने का भी एक तरीका है। उसके अपने फायदे हैं और उसके अपने लिमिटेशंस भी हैं। नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, पर उसकी अपनी सीमाएं हैं, और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। सो इन ब्रीफ, discipline projects a certain kind of image and perspective about a reality, about reality। यानी कि अगर एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तो उसके लिए दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो एक बिल्कुल नजरिया, एक दूसरे किस्म का नजरिया है, जहां वो देखता है, जहां एक कहते हैं कि मेडिकल में एक बहुत पहले एक मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज अ डॉक्टर, जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कोट कहीं से कोटेशन मुझे दिखाया था, जिसमें ये जो कहता था कि वी लिव इन एन ओशन ऑफ डिजीजेस, इट इज नॉट अ वंडर दैट व्हाई वी फॉल सिक, द वंडर इज दैट हाउ डू वी स्टे अलाइव। यानी कि हम बीमारियों के एक समंदर में रहते हैं। आश्चर्य ये नहीं है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बल्कि आश्चर्य ये है कि हम सरवाइव कैसे करते हैं। तो एक डॉक्टर को के लिए समाज को देखने का, दुनिया को देखने का ये नजरिया है। इंजीनियर के लिए दुनिया को देखने का दूसरा नजरिया है। एक म्यूजिशियन के लिए दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये अलग अलग सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। तो डिसिप्लिन हमको यही सिखाता है। अब सवाल ये है, जिस पर मैं इस डिसिप्लिन के डिस्कशन को रोकना चाहूंगा, कि इज नॉलेज बाउंड बाय डिसिप्लिन। तो क्या ज्ञान जो है वो डिसिप्लिन की सीमाओं में बंधा हुआ है, या उसकी सीमा से बाहर जाएगा, या बाहर जाने की कोशिश करता है? ये सवाल हमको करना चाहिए। और आपको अगर इसका जवाब आप ढूंढना चाहेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो सीमाओं में बंधी हुई चीज नहीं, वो सीमाओं से को तोड़ता है, उसके बाहर निकलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नॉलेज इकोसिस्टम? तीन जो एस्पेक्ट्स की हमने बात की थी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, ये तीनों मिलकर के हमारे नॉलेज के, ज्ञान के इकोसिस्टम को बनाते हैं। इसको भी हम थोड़ा समझ लें। मल्टीडिसिप्लिनरी वास्तव में एक इकोसिस्टम है, यानी कि जहां बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, वहाँ ह्यूमैनिटीज भी है, सोशल साइंसेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, वगैरह वगैरह। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर में बहुत सारे डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं, which says that it draws on knowledge from different disciplines, but it remains under its own boundary। नॉलेज को अलग अलग डिसिप्लिन से लाता तो है, पर वो रहता है अपनी यानी कि हिस्ट्री को अगर आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में देखना चाहें तो हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, हिस्ट्री ऑफ साइंस भी है, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी भी है,
हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी भी हिस्ट्री है। अब अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या ये साइंस का विषय है, टेक्नोलॉजी का विषय है या हिस्ट्री का विषय है, तो आप क्या कहेंगे? तो वास्तव में ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पे दुनिया में किस प्रकार से साइंस का, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसको अगर हम देखना चाहें तो शायद इंजीनियरिंग के नज़रिए से, टेक्नोलॉजी के अप्रोच से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम उसको हिस्ट्री के नज़रिए से बेहतर समझ पाएंगे। मेडिकल साइंसेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इवन साइंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमको एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच जो है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी है। वो कहता है कि इट इंटीग्रेट्स डिसिप्लिन्स लाइक ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, फिजिकल, नेचुरल साइंसेज एंड क्रॉसेस देयर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। यानी ये इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है और एक से दूसरे की बाउंड्री में जाता है और फिर वापस आता है। तो ये ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। और तीसरा पहलू जो है इंटरडिसिप्लिनरी, जिसके अंदर हमारा अपना इंस्टीट्यूशन जो है, हम जिस फील्ड से हमारे जैसे लोग आते हैं, डिज़ाइन, जिसको कि हम कहते हैं कि ये एक पूरी तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है डिज़ाइन, जिसमें एस्थेटिक्स भी है, जिसमें आर्ट भी है, जिसमें सोशल साइंस भी है, जिसमें मैनेजमेंट भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे करीब करीब आधे स्टूडेंट जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से होते हैं और उसमें साइंस के बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन का मतलब आमतौर पे लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ कलाकार आते हैं, कलाकार नहीं आते। हमारे यहाँ अलग अलग विषयों से लोग आते हैं। हाँ, एस्थेटिक्स की उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और आर्ट और एस्थेटिक्स पे हमारा एक विशेष जोर भी होता है, फोकस भी होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एस्थेटिक एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी की जब बात होती है तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि इट एनालाइजेस, सिंथेसाइजेस, हार्मोनाइजेस लिंक्स बिटवीन डिसिप्लिन्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ कोहेरेंट आउटकम। तो जब ये इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है तो वो सारे डिसिप्लिन्स को एक जगह इकट्ठा करता है, एक दूसरे से सीखता है, सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करता है और मिला करके एक नए तरीके से, नए नज़रिए से किसी समस्या को देखने का आपको एक देखने के लिए एक दृष्टि देता है। इट गिव्स यू एन इंसाइट to look into a problem, breaking your what you call disciplinary boundaries. So you break off your boundaries and then you try to integrate all those learnings which are available, all those disciplines which are available, you put them together to solve a problem or to come out with an answer. तो ये interdisciplinary का मुख्य रूप से मतलब ये हुआ। अब interdisciplinary को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर एकेडमिक, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक एरियाज ऑफ नॉलेज। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा साइंस, आर्ट्स, एस्थेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, ये सारे सब्जेक्ट्स जब एक जगह मर्ज करते हैं तब ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाता है। इट रिलेट्स टू और इन्वॉल्व 2 और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स यूजुअली कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट। ऐसे 2 अलग अलग, 2 या 2 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जिसको आमतौर पे हम समझते हैं ये सारे अलग अलग हैं, यानी ये एक हो ही नहीं सकते। यानी कि एस्थेटिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में कोई संबंध ही नहीं हो सकता। यानी इंजीनियरिंग का छात्र जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग ही समझ सकता, एस्थेटिक्स नहीं समझ सकता, सौंदर्य नहीं समझ सकता, प्रोडक्ट एस्थेटिक्स नहीं समझ सकता, तो वो क्या करेगा फिर? कल को उसको अगर किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा और एस्थेटिक्स के बारे में उसकी जानकारी कम रहेगी या नहीं रहेगी, या एस्थेटिक सेंसिबिलिटी उसकी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा? तो वो सारी इंजीनियरिंग तो एक जगह पे आप सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कार के बोनेट को खोलेंगे तो अंदर में आपको इंजन दिखाई पड़ेगा, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और एस्थेटिकली बड़ा अनप्लीजिंग होता है। यानी इंजन को देख के कार की खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, कार की एफिशिएंसी का अंदाजा लगाया जा सकता है, कार की खूबसूरत चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है, कार के स्पीड और स्मूथनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसमें भी एक खूबसूरती है। लेकिन उसकी खूबसूरती जब वो आप उसके बोनट को बंद कर देते हैं, पूरे फॉर्म को देखते हैं, उसके अंदर के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उसकी हेडलाइट, उसकी टेल लाइट, उसके कर्वेचर, उसके एंगल्स, उसके सीट कवर, इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग को जब देखते हैं तब आप एस्थेटिकली उसको समझ पाते हैं, तब आप कहते हैं हाँ ये एक प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट वास्तव में इंजीनियरिंग है या डिज़ाइन है, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो इसका मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि इट ऑल्सो
इंटीग्रेट्स यानी चीज़ों को इकट्ठा करता है। किस लिए इकट्ठा करता है? टू मेक होल बाय पुटिंग टुगेदर। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप एक नई चीज़ पैदा करते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी की ताकत है। इंटरडिसिप्लिनरी देयरफॉर इज अ प्रोसेस whereby ideas, data, information, methods, tools, concepts, इस सारी चीज़ों को हम एक साथ मिला के उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको मिला करके एक ब्लेंड करते हैं और किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में, किसी एक खास पर्पस के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। अब हम आ जाएं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन के पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इंटरडिसिप्लिनरी वगैरह की बात की है तो वास्तव में इंटरडिसिप्लिनरी से हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको अगर हम देखने जाएं तो हमारी जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ जिनसे हमको जूझने की ज़रूरत होती है, वरना आप टेक्नोलॉजी क्यों डिज़ाइन करते हैं? आप क्यों कंप्यूटर्स बनाते हैं? आप क्यों बाइसिकल बनाते हैं? आप क्यों मोटरसाइकिल बनाते हैं? आप क्यों माइक्रोवेव ओवन बनाते हैं? आप क्यों एयर कंडीशनर बनाते हैं? ये सारी चीज़ें आप इसलिए बना रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि ये किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं हमारी। अगर हमको हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम एयर कंडीशनिंग की बात करने लगते हैं। हम उसके डिज़ाइन उसके लिए एक टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। पर हमें देखना ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं, वो इतनी सिंपल नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। यानी कि सिर्फ अगर हम किसी एक नज़रिए के साथ काम करें तो उसका समाधान हमें नहीं मिलता है। हमें कई सारे नज़रिए के साथ एक किसी समस्या को देखना पड़ता है। मैं हाल में बात कर रहा था अपने कुछ कलीग से, जो कि हमारे डिज़ाइन की फैकल्टी हैं, और उनमें से कई सारे जो जिनसे मेरी बात हो रही थी उनका अपना भी बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी का है। बड़े वो खुद इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग, साइंस के स्टूडेंट हैं और बड़ी अच्छी जानकारी उनकी है। तो एक समय में एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, या शायद किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ, वो मैं भूल रहा हूँ इसलिए करूँ मुझे। तो उसके साथ वो काम कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट ये था कि उनको स्मोकलेस चूल्हा गाँवों के लिए डिज़ाइन करना था। अब उसमें डिज़ाइनर्स की भी टीम इन्वॉल्व थी, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट की भी टीम इन्वॉल्व थी, उसमें साइंटिस्ट की भी टीम इन्वॉल्व थी। सारे लोग मिलकर देख रहे थे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के लोग थे जो उस टीम में काम कर रहे थे, वो सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि इसमें हमें इसकी एफिशिएंसी जो बढ़ानी है वो हीट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, यानी हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब समस्या ये थी, डिज़ाइन के जो एक्सपर्ट्स थे उसमें, उनके हिसाब से जो ब्रीफ था वो ब्रीफ ये था कि इसमें आप धुआं को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो चैलेंज है वो स्मोकलेस चूल्हा बनाना है, हीट के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम नहीं, का चैलेंज नहीं था। तो टेम्परेचर तो बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हीट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें ये था कि उसमें उससे जो निकलता है एमिशन जो होता है, जो धुआं निकलता है जिससे औरतों को परेशानी होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ये एक आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट कहें या जो भी कहें, एक ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट चाह रहे थे कि इसमें हम इसके टेम्परेचर पे काम करें, इसके मैक्सिमम हीट के आउटपुट पे काम करें, और डिज़ाइनर्स चाह रहे थे कि इसमें जो रियल चैलेंज है धुएं को कैसे कम किया जाए, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और लकड़ी पे जब आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसे कितना हीट जनरेट होता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि लकड़ी कितनी गीली है, लकड़ी कितनी सूखी है, कौन से पेड़ की लकड़ी है। ये इन सारी बातों को भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकेंगे कि उससे हीट कितना जनरेट होगा। और उसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन है और अलग अलग प्रकार की लकड़ियां हैं और वगैरह वगैरह। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी अगर आपके सामने होता है तो वो अकेला नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम वास्तव में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है जब वो समाज के बीच में जाता है। जब समाज से गया तो बात अलग है। So there is a constant search for new methods to solve these problems. You cannot solve these problems from one type of perspective, which is only technology, or which is only design, or which is only aesthetics, or which is only social science perspective, and so on. You will have to come together. That is why in today's atmosphere, in today's environment,
whatever problem we are trying to solve, we want to bring in as many expertise as possible, and we want to put them together so that they can understand how this problem, which looks so simple, can be tackled efficiently and from multiple perspectives. क्योंकि उस चूल्हे का इस्तेमाल गाँव में होने वाला है, हो सकता है गाँव से निकल के वो शहरों में भी चला आए, ऐसे लोगों के बीच में चला आए जिनके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या जिनके पास ढंग के मकान नहीं है या जो सड़क के किनारे रहते हैं, आप यू नेवर नो, आपको पता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को अगर उस लेवल पे हमको लेके आना है तो हमको सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सारी रियलिटीज को समझना पड़ेगा, इस मुद्दे को ध्यान में रखना है। सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना रेलिवेंट हो जाता है, इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, पर्सपेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी यूजफुल दीज डेज, बिकॉज एक अप्रोच से हम काम नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि ये जो साइलोज हम कहते हैं डिजाइन के टर्मिनोलॉजी में, कि हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जहाँ डिजाइनर टेक्नोलॉजी से बात नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजिस्ट डिजाइनर से बात नहीं कर रहा है, और सोशल साइंस वाला डिजाइनर से बात नहीं कर रहा, और ह्यूमैनिटीज वाला सोशल साइंस से बात नहीं कर रहा है। ये सारे अलग अलग जो काम कर रहे हैं, और तब सारी की एक साझा प्रॉब्लम है, इकट्ठी प्रॉब्लम है, और उस साझा प्रॉब्लम को डील करने में, उसके सॉल्यूशन को निकालने में वो सब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने नजरिए से एक प्रॉब्लम को देखते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप लोगों ने सुनी होगी। एक हमारे जो जैन ट्रेडिशन है, उसकी जो अपनी परंपरा है, उसमें एक उसी से ली हुई एक कहानी है, विच इज अबाउट ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि 7 दृष्टिहीन लोग थे जो दृष्टिबाधित थे, देख नहीं पाते थे, और उनके सामने एक हाथी था। तो एक व्यक्ति ने उसकी सूंड को छुआ और उसने कहा कि अरे ये तो किसी मोटे रस्से की तरह है। किसी ने उसके कान को छुआ, उसने कहा कि अरे ये तो पंखे की तरह है। किसी ने उसके पाँव को छुआ, उसने कहा कि ये खंभे की तरह है। और इस तरीके से सबों ने अपने अपने ढंग से एक हाथी को समझने की कोशिश की। तो उधर से कोई ज्ञानी व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा कि तुम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे सत्य है, लेकिन सब तुम लोग अर्ध सत्य की बात कर रहे हो, तुम लोग बिल्कुल आधी सच्चाई को समझ रहे हो। क्योंकि हाथी ये सारी चीजें जो है वो हाथी में है, और इन सारी चीजों को मिलाने के बाद ही हाथी बन पाता है। तो हाथी न सिर्फ ट्रंक है, न उसकी सूंड है, न सिर्फ उसका पाँव है, न सिर्फ उसका कान है, न सिर्फ उसकी दुम है, पूंछ है, बल्कि इन सारी चीजों को मिला करके ही हाथी बनता है। तो ये जो तरीका है वो तभी हो सकता है जब हम अपने बॉक्सेस में से बाहर निकल के चीजों को देखने की कोशिश करें, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। हाउ कैन यू ब्रिंग आउट एन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन? जो बक्से में बंद है उसको आपने बाहर निकाला, नए तरीके से लोगों को बताया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इंजीनियरिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम बाय डिजाइनिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। आप जो करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं, बट solutions are used by variety of people in variety of ways. आपने तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया। मैं कुछ एग्जांपल्स भी उसके आपको बताऊंगा। एक बहुत पहले, अभी तो कुछ साल पहले की बात है, इंडियन रेलवे ने जर्मनी से कुछ कोचेस मंगाए, बड़े हाईटेक कोचेस थे, जिनके ऑटोमेटिक डोर्स थे, और उसके टॉयलेट के डोर्स भी ऑटोमेटिकली बंद होते थे, खुलते थे, वगैरह वगैरह। और जब उसको लोगों ने चलाया तो वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ हिंदुस्तान में, क्योंकि लोगों ने शिकायत की कि मुझे डर लगता है, जब मैं अंदर जाता हूँ ये खुद से बंद हो जाता है, खुद से खुल जाता है, कभी मैं फंस जाऊँ, कभी मैं अंदर रह जाऊँ। तो उस पर इतनी हाय तौबा मची कि सरकार को रोकना पड़ा। तो वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो था वो बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद हमारा समाज सोशली, कल्चरली अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां इस लेवल की टेक्नोलॉजी को हम एसिमिलेट कर सकें। सो एक सवाल खड़ा होता है जो हम डिजाइन में हमेशा कहते हैं, कैन डिजाइन चेंज बिहेवियर? क्या डिजाइन की वजह से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है? और सिमिलरली ये सवाल आप भी करें कि कैन टेक्नोलॉजी भी चेंज बिहेवियर? क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिहेवियर चेंज होता है, या बिहेवियर टेक्नोलॉजी को बदल देता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इसको
अपने सारे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन को इस नज़रिए से भी देखने की कोशिश करें कि क्या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है या सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, या दूसरे शब्दों में कहें क्या टेक्नोलॉजी से बिहेवियर बदल सकते हैं या बिहेवियर की वजह से टेक्नोलॉजी को बदलने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को अगर हमें समझना होगा तो हमें फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। सो लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। अब ये गूगल का आपको मालूम होगा कि ऑटोनमस कार्स के ऊपर काफ़ी उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नाउ लुक एट these concepts which they have come out with. You have a self actualized car. अब self actualized car का मतलब क्या है? कहता है कि I'm going back to school, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, so मैं I'll take all my decisions myself. दूसरे लेवल पे you have a self conscious car. Again these are all conceptual things. ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन ये सारी चीजें इनफैक्ट रियलिटी में आ चुकी हैं। मार्केट में आई हो ना हो, उनको आने में मार्केट में थोड़ा समय लगेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट होके और लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट से काम करके उसके सॉल्यूशंस, उसके प्रोटोटाइप तैयार कर लिए हैं। सो यू हैव समथिंग लाइक अ सेल्फ कॉन्शियस कार विच सेज वुड आई लुक बेटर इन रेड, यानी कि मेरा ग्रे कलर है तो क्या मैं अगर लाल रंग की हो जाऊं तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी। अब ये आदमी की तरह मशीन अगर सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, that is where artificial intelligence is involved. ये artificial intelligence के impacts हैं और ये artificial intelligence का challenge है not only for the technology but also for the humanity. क्योंकि हमने शुरुआत तो की सेल्फ ड्राइविंग कार से कि भाई गाड़ी जो हो, ऑटोनोमस व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, गाड़ी अपने आप बैठ जाए गाड़ी को और अपने डेस्टिनेशन को फीड कर दें और गाड़ी अपने आप सड़क पे चलने लगे। स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी कई सारे देशों में इस पर चूँकि फॉर वेरियस रीजंस अब इसको परमिशन नहीं मिली है, चूँकि लोगों में थोड़ा डर है, थोड़ा खौफ है, टेक्नोलॉजी एसिमुलेशन की प्रॉब्लम है, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दिस इज द फ्यूचर, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। तो सवाल है कि सिर्फ आप ऑटोनोमस व्हीकल बना करके आपका काम चल जाएगा, स्मार्ट कार बना के काम चल जाएगा, या उसके साथ और भी कुछ करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है सिर्फ स्मार्ट कार इज नॉट द सोल्यूशन। स्मार्ट कार के साथ साथ आपको स्मार्ट रोड्स भी बनाने पड़ेंगे, जहां वो गाड़ियों को बताएगा कि आपको कैसे चलना है, कहाँ रुकना है, किस स्पीड पे चलना है, उसके साथ कॉन्स्टेंटली वो इंटरैक्ट करेगा, तभी हो सकेगा। तो इस तरीके की बहुत लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अब जब इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं तो वो कितने सारे नए नए उसके फ्रंटियर्स खड़े हो गए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम IoT की बात करते हैं, हम बिग डेटा की बात करते हैं, मशीन टू मशीन इंटरफेस की बात करते हैं। ये सारे नए नए डायमेंशंस टेक्नोलॉजी के खड़े हो गए हैं। मैं ये पर्टिकुलरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। जो स्मार्ट सिटी को अगर चलाना है तो उसके टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस ही हैं हमारे पास, बट सोल्यूशंस आर टू बी यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। आप एक सोल्यूशन लेके तो चले जाएंगे, लेकिन जब समाज में सोल्यूशन जाएगा, यानी ये जब गाड़ियां जाएंगी समाज में, तो ह्यूमन बिहेवियर तो बिल्कुल ऑटोनोमस है, वो बिल्कुल अपने ढंग से सोचता है, अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो वो कैसे ऐसे व्हीकल्स के साथ, ऐसे मशीन्स के साथ इंटरैक्ट करेगा? क्या मशीन ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी या ह्यूमन बिहेवियर मशीन को इन्फ्लुएंस करेगा, ह्यूमन बिहेवियर टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा? तो अगर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ही ज़रूरत पड़ेगी, वरना सिर्फ टेक्नोलॉजी के नज़रिए से इसको हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमको बिहेवियरल इश्यूज भी समझने पड़ेंगे, और बिहेवियरल इश्यूज समझने के लिए हमको साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, ना कि टेक्नोलॉजी में। इसके लिए हमको सोशल इश्यूज भी समझने पड़ेंगे, और सोशल इश्यूज को समझने के लिए कि लोग किस प्रकार से सड़कों पे चलते हैं, सड़कों और लोगों के बीच में रिश्ता क्या होता है भारत के जैसे देश में, जहाँ लोग सड़कों पे रहना पसंद करते हैं। अब विदेश चले जाएं, फॉरेन यूरोप में चले जाएं, तो सड़कें सिर्फ चलने के लिए होती हैं, सड़कें वहाँ पे दुकान लगाने के लिए नहीं होती हैं। सड़कें वहाँ पे खाट लगा के बैठने के और पंचायत करने के लिए, और कृषि कानून के विरोध में सड़क जाम करने के लिए सड़कें नहीं होती हैं। सड़कें सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए होती हैं। लेकिन हमारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशन के हिसाब से सड़क का मतलब है वो इट इज एवरीबॉडीज प्रॉपर्टी, यू कैन डू एनीथिंग विद द रोड।
विदेशों में आप सड़क पे एक कतरा नहीं फेंक सकते, लेकिन हम यहाँ पे आए दिन देखते हैं कि लोग दरवाजा खोलते हैं, चलती गाड़ी में से पान का थूक फेंकते हैं सड़क पर और चल देते हैं आगे। तो टेक्नोलॉजी किस हद तक सक्षम होगी, टू व्हाट एन एक्सटेंट टेक्नोलॉजी विल बी able to control all these aspects which are related to human behavior, which are influenced by sociological factors, which are influenced by cultural factors, which are influenced by economic factors, and so on and so forth. इन सारी चीजों को समझना होगा, और इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक केस स्टडी थोड़ा डिस्कस करूंगा, जो कि मैं मुख्य रूप से अर्बनाइजेशन पे, मैं अर्बन चैलेंजेस के ऊपर मैं काफ़ी काम करता रहता हूँ। अर्बन पॉलिसीज, अर्बन चैलेंजेस, इंडिया के जो अर्बन चैलेंजेस हैं, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह वगैरह, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में आपको टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स देके इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम एक एग्जांपल लें, तो सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली व्हाट डज इट डू? इट डिजाइंस बिल्डिंग्स, रोड्स, सीवेज सिस्टम, एटसेट्रा, यू सी। लेकिन our urban problems are the problems of public policies as well. टेक्नोलॉजी तो आप ले आएंगे, लेकिन पॉलिसी के लेवल पे चेंज नहीं होता है हिंदुस्तान में, बहुत धीमे धीमे पॉलिसी लेवल चेंज होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट कैसे समझ पाएगा कि ये हमारी पॉलिसी क्या है जिसके हिसाब से हमको नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, डेवलप करनी है? अगर पॉलिसी एनवायरनमेंट सही नहीं है तो टेक्नोलॉजी फिर आपके लिए बहुत कारगर साबित नहीं होती है। So one has to deal with socio-cultural diversity, economic status, sustainability, environmental concerns and so on so forth. अब इसको अगर आप देखिए तो अर्बन प्रॉब्लम्स जो है हमारे हिंदुस्तान, भारत जैसे देश में, वो पॉलिसी प्लानिंग के प्रॉब्लम है, अर्बन गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, फाइनेंस के प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी एंड डेटा सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल चैलेंज, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है, सोशल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, नॉलेज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ट एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, एक्शन रिसर्च, एडवोकेसी, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक समस्या के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो है अर्बन रीडेवलपमेंट, जिसको हम अर्बन रिजुविनेशन कहते हैं, कि हम अपने शहरों को कैसे बेहतर बनाएं, अपने शहरों को स्मार्ट सिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। अब जब ये सवाल स्मार्ट सिटी का, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या कहीं से ब्रेक हो रहा है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Clear. Thank you. So this urban problem, which looks like a, to a technologist, to an engineer, like a civil engineer, जो कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा होगा, या बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा होगा, या गुजरात सरकार या भारत सरकार में एम्प्लॉयड होगा, PWD, CPWD, whatever it is, तो उसके लिए वो एक टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। उसको शायद ये लगे कि ठीक है, हम बेहतर टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो हम अर्बन गवर्नेंस को बेहतर कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अर्बन गवर्नेंस के लिए आपको सोशल डेवलपमेंट की भी जरूरत होती है। समाज अगर डेवलप नहीं हुआ तो टेक्नोलॉजी आपकी कितनी भी डेवलप्ड हो, वो काम नहीं करेगी, उतनी कारगर नहीं होगी जितनी आप उससे उम्मीद रखते हैं। उसके बाद आपको उतनी ही फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। आपको क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बीच में भी एक सामंजस्य, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आप अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पेड़ों को काटना शुरू करें और वाटर बॉडीज को शुरू करें, people have lots of problems because of that, because then you are changing the ecosystem, the ecological balance, तो बहुत सारी चीजें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जब तक कि इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज को टोटालिटी में नहीं देखता है, तब तक वो बहुत अच्छा हो के भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। यानी आप बहुत अच्छा सीवेज सिस्टम तैयार कर लें, लेकिन आप इस बात का क्या करेंगे कि आज भी इस देश के अंदर में सिंगल यूज प्लास्टिक पे कोई बैन नहीं है, और हम सारे लोग बेशर्मी से बेतहाशा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जानते हुए कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है। हमारी गायें उसको खा रही हैं, हमारे जानवर उसको खा रहे हैं, वो डिग्रेड नहीं होता है। ये सब बहुत बच्चे जानते हैं,
पर सबों ने थ्योरेटिकली रट लिया है इस बात को, लेकिन कोई प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन नहीं, प्रैक्टिकल उसके लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो वास्तव में क्या है? ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, ये मुख्य रूप से बिहेवियरल प्रॉब्लम है और सोशल कंट्रोल की प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी क्या करेगा इसमें? आप सिर्फ सीवेज का डायमीटर बढ़ा करके तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वाटर फ्लो बढ़ा देंगे पर वो कंजेशन तो होगा ही, क्योंकि उसमें प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं। तो ये ऐसी ऐसी समस्याओं को अगर आप देखें तब आपको लगेगा कि शायद हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो बड़े आपस में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके साथ हमको डील करना होता है, और उनको डील करने के लिए हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ही किसी सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपके अपने विषय पे, बिकॉज मैं आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिस्ट, आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग, I'm basically an interdisciplinary teacher who fortunately had the privilege to work with institution like NID, where we interact with people from varieties of expertise and experiences and different walks of life, very bright people on their own rights. उसमें एस्थेटिक्स से भी रिलेटेड लोग हैं, उसमें क्राफ्ट से भी रिलेटेड लोग हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो जो आप साथ इकट्ठा काम करके जो इंसाइट डेवलप करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब इंजीनियरिंग का जहां तक जो सवाल है, न्यू टेक्नोलॉजीज नए डिजाइन्स को, उसकी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। जब आप नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नई डिजाइन, नई पॉसिबिलिटीज खड़ी होती हैं, विच क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड सेट ऑफ डिसीजन पॉइंट्स। यानी कि आपको कई सारी टेक्नोलॉजी एक चीज़ के लिए मिल जाती है, और तब आपके लिए शायद ये निर्णय करना भी मुश्किल होता है कि इसमें से बेहतर टेक्नोलॉजी कौन है, किसका हम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमको बुलेट ट्रेन चलानी है तो जापानीज टेक्नोलॉजी और बुलेट ट्रेन ज़्यादा अच्छी है कि सीमेंस की टेक्नोलॉजी जर्मन ज़्यादा अच्छी है, या चाइनीज़ जो बहुत जोर लगा रहे थे हिंदुस्तान में अपने क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स ही आपके सामने खड़े होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्स फील्ड्स सच एज प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एनकरेज द शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। अब आज की तारीख में डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन और डिजाइन के दूसरे डायमेंशन जो डिसिप्लिन हैं, वो इंजीनियरिंग के साथ मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया नजरिया भी आपको पेश कर रहे हैं। सो अभी क्या देखने में आ रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम थ्योरी बेस्ड लर्निंग टू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक शिफ्ट हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा वहीं पे समस्या है। तो मेरा एक छोटा सा, एक बहुत आई हैव अ मॉडेस्ट सजेशन टू योर इंस्टीट्यूशन एज वेल, कि जब आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए लड़कों को तैयार करते हैं तो सिर्फ उनको थ्योरेटिकली तैयार नहीं करें, बल्कि उनको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ एनकरेज करें। उनके अंदर में ये ताकत डेवलप करने के लिए उनको एनकरेज करें कि वो खुद से प्रॉब्लम्स को समझें और खुद से उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, नया नजरिया, नया तरीका, नया मेथड डेवलप करने की कोशिश करें। वरना सारी की सारी चीज़ें वो किताबों में जो आपने रट ली और रट के चले आए, जिसका कोई समाज के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होता, वो सारी किताबों में होता है। ये भी सीखने की ज़रूरत है, और आपके जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत मुझे लगता है कारगर होगा, फ़ायदेमंद होगा अगर इस अप्रोच के साथ हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के साथ हम काम करना शुरू करें। रियल लाइफ सिचुएशंस आर एसेंशियल फॉर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग। तो अब थेरीज को हमको, जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो थेरी को हमको हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, थेरी पढ़ के नहीं, हमने खुद से किया और खुद से करके अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की। आज के समय में उसको हम इनोवेशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, इनोवेशन, अगर आप इसको देखने जाएं तो ये सारी चीजें आपस में अलग अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं आपके आपस में जब किसी सॉल्यूशन को अचीव करना होता है तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें आपस में आके एक जगह पे मिलती हैं, अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करती हैं। तो टेक्नोलॉजी से इनोवेशन और इनोवेशन से डिजाइन की तरफ हम जर्नी को पूरा करते हैं, और तब एक सोल्यूशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आई एम बीइंग क्लियर टू यू, और अगर जो भी कंफ्यूजन होगा तो इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे 5 मिनट।
So today's solutions require creative thinking rather than quick fix options. So आज जो टेक्नोलॉजी के भी जो solutions हैं वो वहाँ पे हमको creatively सोचने की जरूरत है, बहुत रचनात्मक, बहुत सृजनात्मक ढंग से सोचने की जरूरत है, rather than quick fix options। वो जो हमारे पास wrenches हैं और हमारे पास टूल किट है वो लेके आए, वो गेटा थनबर्ग वाला टूल किट नहीं, आपका जो टूल किट होता है उस टूल किट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो उस टूल किट से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की का जो हमारा तरीका है उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। और कभी कभी मैं ये कहता हूं कि कभी मिनिमाइजिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन दैट आल्सो बी एन ऑप्शन, मिनिमाइजिंग डिजाइन इन अ प्रोडक्ट कैन दैट आल्सो बी एन ऑप्शन, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि शायद किसी कुछ खास समस्याओं के कॉन्टेक्स्ट में शायद टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करना यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन रादर देन यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टेक्नोलॉजी देंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है आपका? पर्पस तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करें। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो फौजी हैं और इन्फेंट्री के आदमी थे, इन्फेंट्री के ऑफिसर थे, और फिर उन्होंने फौज छोड़ दिया। और फौज छोड़ने के बाद जब वो कॉर्पोरेट में काम करने लगे तो फिर वो कई सारे बैंक्स में रहे और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रहे। तो उन्होंने ऐसे ही एक बार चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब एटीएम वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे बैंक्स में वगैरह वगैरह, तो जब हमारी टीम उस पर डिस्कशन कर रही थी तो हमने यही कहा सारे लोगों को जो टेक्नोलॉजी से जुड़े थे, तमाम लोग, कि ये जो एटीएम मशीन है इसके बैक एंड में जितना कॉम्प्लिकेशन आपको करना है करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका फ्रंट एंड जो है वो उतना सिंपल होना चाहिए कि एक बच्चा भी उसको इस्तेमाल कर ले और एक बूढ़ा भी इस्तेमाल कर ले। एक 10 साल का बच्चा भी उस मशीन को इस्तेमाल कर सके और एक 80 साल का बूढ़ा भी उस मशीन को इस्तेमाल कर सके, इतना सिंपल होना चाहिए। So there, all the complications, let the complications go at the back end, but the front end should be as simple as possible. उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां आप किसी चीज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यू आर इंटरैक्टिंग विद समथिंग, और अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। So engineering is also moving towards what is called these days practice-based learning, PBL, which requires an interdisciplinary approach. अब ये प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग का जहाँ सवाल होगा वो तो बिना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होगा नहीं। और आज अगर मैं एग्जांपल दूं, when you graduate and when you go out, start working in corporate or in government or in other places, आप अकेले काम नहीं करते हैं, you work in team, and your team there may be somebody who has a background in policy, who has a background in architecture, who has a background, let's say, in design, who has a background in social science. अब ये सारे लोग इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं और वहां पे आपको अपनी इन सारी जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसको अनलर्न करना पड़ेगा और एक प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि इंजीनियरिंग का नया डायमेंशन है, जिस तरफ इंजीनियरिंग आज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग विल हैव टू बी डिफरेंट, क्योंकि जब आप इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तब आपको समस्याओं को देखने का नजरिया और उसको सुलझाने का नजरिया भी बहुत अलग होता है। अब यहाँ से मैं एक केस स्टडी के तौर पे इंडिया के अर्बन चैलेंजेस को टेकअप कर रहा हूँ और इसमें कैसे टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की क्या जरूरत है, नहीं हो सकती है, इसको देखने की आप कोशिश कीजिए और तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो है वो कितना इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, कितना मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाता है। अब दिस इज अ केस स्टडी and I'm putting it up in front of you so that you can understand the complexity with which you'll have to deal with. अब आप समझिए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में काम कर रहे हैं या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, ऐसे किसी विभाग में काम कर रहे हैं जिसका अर्बन डेवलपमेंट से वास्ता है और अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम से वास्ता है उसका। तो कुछ
बेसिक चीज़ें तो आपको जाननी पड़ेंगी और उसको जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके चैलेंजेस क्या हैं और कि आपका रोल उसमें क्या हो सकता है। अब मैंने एक केस स्टडी आपके सामने बिल्डअप किया, इसको समझने की कोशिश करें। आज़ादी के समय भारत की जो पॉपुलेशन थी 35 करोड़ थी, 350 मिलियन। आज हमारे आज़ादी के 70-75 साल के बाद सिर्फ हमारे शहरों की आबादी 35 करोड़ हो गई है। यानी जो पहले पूरे भारत की आबादी होती थी वो सिर्फ आज हमारे शहरों की आबादी है। सो द पॉइंट इज द सिटीज आर ग्रोइंग। ठीक है, 37 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी है। अर्बन पॉपुलेशन 11 से 28% के रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है। जो शहर थे हमारे एक समय में, वो आज़ादी के समय 1827 शहर थे, अब 4386 शहर हो गए हैं। और जो अर्बनाइजेशन की यानी शहरीकरण की जो रफ्तार है भारत में वो 31% हो चुकी है, 31%। सो 31% ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन, यानी जो 35 करोड़ हमारे सिर्फ शहरों की आबादी है, यूरोप के कई सारे देशों को मिला ले तो उतनी उनकी इकट्ठा आबादी नहीं होगी जितनी हमारे सिर्फ शहरों की आबादी है। गांवों की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। ठीक है, सो अभी 33% की रफ्तार से अर्बनाइजेशन हो रहा है। उम्मीद है कि ये रेट जो है वो 40-50% की तरफ चला जाएगा। सिर्फ दुनिया में टोटल 54 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं 2012 के डेटा के अनुसार से। अब इसमें से अगर आप देखने जाएं तो इसमें से मेजॉरिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो भारत में है, जबकि हम गरीब देश हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं उनकी संख्या, तादाद विश्व के किसी भी शहर देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ की आबादी का डेटा देखें, डेमोग्राफिक डेटा देखें, सो 410 मिलियन, द सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। 410 मिलियन पॉपुलेशन के साथ हम दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन कम्युनिटी हैं, शहरी कम्युनिटी हैं। बट जो अर्बनाइजेशन की रफ्तार है हमारे यहाँ 32% है, जिसको हम स्लो कह रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 50% हो जाए तो 135 करोड़, और जो कि वो रुका नहीं है, 135 बढ़ता जा रहा है। उसका अगर 50% अर्बनाइज हो जाएगा तो उसकी क्या क्या समस्याएं होंगी। उसको बिजली, उसको पानी, उसको मकान, उसके लिए सीवेज, उसके लिए हेल्थ, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें मुहैया करानी पड़ेंगी। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज सिर्फ क्योस मचेगा, सिर्फ तबाही मचेगी। तो ये चैलेंज है आपके सामने। तो ये क्या, इसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान निकाल सकते हैं या हमें और भी तरीके देखने पड़ेंगे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 640 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी हमको 2031 तक। और हमारा जो फंडिंग गैप है वो 80 से 110 बिलियन डॉलर का है, यानी इतनी की जरूरत है और 110 बिलियन डॉलर हमारे पास कम है। कहाँ से आएगा इतना पैसा अर्बनाइजेशन के लिए? तो अगर आप टेक्नोलॉजी भी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी की बात कैसे कर सकते हैं, आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास कैसे कर सकते हैं जो कम खर्चे की टेक्नोलॉजी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता हो, सरकार उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। तो ये चैलेंज है आपके लिए, ये ना कि सिर्फ आप किसी टेक्नोलॉजी को ले आए और फिर कहें कि ये इस्तेमाल कर लें आप। फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होगी, इन्वेस्टमेंट हमें रोड में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैफिक में, ये सारी बातें, अर्बन स्ट्रीट की लाइटिंग में, वाटर सप्लाई में, ये सारी चीज़ों पे जो हमें खर्च करना पड़ेगा वो 506.3 बिलियन डॉलर का होगा। आप अनुमान लगाएं कि कितना बड़ा चैलेंज है ये। अब जब ये समस्या हमारे सामने थी तो हमने कहा कि चलिए अब हम एक नए भारत के शहरों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, रिजुविनेश करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव अ प्लान फॉर अर्बन रिजुविनेशन, and what is that plan actually takes, where the plan actually takes us to. So the plan is actually taking us towards creating smart cities. अब जो स्मार्ट सिटीज का सवाल है तो इसमें हम नए शहर नहीं बसाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनमें रेट्रोफिटिंग करके उनको स्मार्ट बनाने की बात हो रही है। अब बिल्कुल क्लीन स्लेट है आपके पास, बिल्कुल सादा जमीन है, तो वहां पे तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
खूब हाई टेक्नोलॉजी, IoT, M2M, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस दैट, सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने शहरों को तो देखा ही होगा। पालनपुर जहां आप रह रहे हैं, या बड़ौदा, या अहमदाबाद, या सूरत, या वापी, या वलसाड़, कैसे शहर हैं हमारे? हमारे ज्यादातर शहर मिक्स नेचर के सिटीज हैं, जिनको हम रर्बन बोलते हैं। सोशियोलॉजिकली हम उनको कहते हैं रर्बन, विच इज रूरल प्लस अर्बन, यानी वो आधे गांव भी हैं और आधे शहर भी हैं। हमारा कोई शहर पूरी तरह से गांवों से खाली नहीं है। हमारे हर शहर के अंदर में कुछ गांव जीवित हैं, यानी कि गांव की लाइफस्टाइल जीवित है, उस किस्म के मकान है, उस किस्म की गलियां हैं, उस किस्म का रहन सहन है। अब इसमें अगर हम पूरी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी का मॉडल है हमारे पास स्मार्ट सिटी का, जिसमें हम स्मार्ट सॉल्यूशंस, स्मार्ट थिंग्स, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, वाटर, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों के लिए हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जो कि ड्रोन्स पे बेस्ड है, जो मीटर्स पे बेस्ड है, जो सेंसर्स पे बेस्ड है, जो कैमरा पे बेस्ड है, जो मोबाइल डिवाइसेस पे बेस्ड है, जो वेयरेबल जो डिवाइसेस हमारे पास, घड़ियाँ और ये सारी चीज़ें आ गई जो रियल टाइम डेटा हमको दे रही हैं, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड है। तो ऐसा शहर क्या हम बसा पाएंगे? और अगर ये शहर बस जाएगा तो वो किस प्रकार का शहर होगा, और वो कैसे लोग होंगे जो इस प्रकार के शहर में रह पाएंगे, जो कि इन सारी टेक्नोलॉजी से वाकिफ हों और इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ आसानी से एक रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सके। अब अगर ये सवाल आप अपने आप से करें, अपने घर के ही बड़े बुजुर्गों से करें, अपने ही परिवार में अलग अलग लोगों से करें और पूछें कि आपको इस प्रकार के शहर में रहना हो चाहेंगे आप, तो शायद आपको जवाब कुछ और मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्ट सिटी एक खराब कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट सिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्मार्ट सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें टेक्नोलॉजी अकेला काम नहीं कर सकता जब तक कि टेक्नोलॉजी के साथ हम सोशल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा न कर दें। अब मैं चूंकि बिहार से आता हूँ, स्वच्छ भारत का कार्यक्रम जो है स्मार्ट सिटी के अंदर में पूरे देश में चल रहा है, हमारे शहर में भी चल रहा है। और अगर मैं आपको डेटा देके बताना चाहूँ तो बिहार, भारत के जब से बिहार का पार्टीशन हुआ, डिवीज़न हुआ, जिसमें एक हिस्सा निकल के झारखंड हो गया, दूसरा बिहार रह गया, तब से बिहार में शहरों की संख्या बहुत कम हो गई। इट इज़ इंडियाज वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स, यानी कि वैसे शहर प्रांतों में हो गया, वैसे प्रदेश में हो गया जहां अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का जो डेटा की जो रफ्तार है, की जो संख्या, वो सबसे कम में है देश में। यानी हमारे पास बहुत कम शहर है, हमारा ज़्यादा एरिया रूरल है। और जो शहर है उसमें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 3-4 दिनों पहले भी अभी जो अर्बन सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, जिसमें नॉर्थ बिहार का एक शहर है मुजफ्फरपुर, जो कि नॉर्थ बिहार का एक कल्चरल और हब सेंटर है, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सेंटर है, वो भारत का वर्स्ट लिवेबल सिटी में से गिनती उसकी हो रही है, यानी कि ऐसा शहर जहां कि आप रहना नहीं चाहेंगे, सबसे खराब। तो ये क्या समस्या है और कैसे इसको, क्या टेक्नोलॉजी इसका समाधान है? अब समस्या ये है कि वो शहर बहुत पुराना है, हजारों साल पहले से बसा हुआ शहर है, जिसमें अर्बन प्लानिंग की बहुत कमी है, हाफिज़ार डेवलपमेंट है, जैसे तैसे मकान बना लिए गए हैं, उसके बीच में से गलियां, उसके बीच में से सड़कें निकाल ली है। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसके अंदर में आपको सफाई मेंटेन करनी है, तो क्या आपके पास टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है या आपके पास सोशल इनोवेशन के तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे? और सफाई का चैलेंज है, सफाई आपको मेंटेन करनी है। तो देखिए कि कितना बढ़िया एक सर्वे मैंने खुद किया था शहर में जाके 2 साल पहले जब मैं पटना गया था, और मुझे गलियां और ख़ासतौर पे गलियां वगैरह बहुत साफ सफाई दिखाई पड़ी। तो मैंने जानना चाहा कि भाई उसके पीछे वजह क्या है। अब आप इसको देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है।
अब इसके लिए जो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनफैक्ट ये पूरे भारत में कई देशों, इंदौर में भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि ये गाना बजाते हुए गाड़ियां घूमती हैं, छोटी छोटी, ये जो छोटे ट्रक है जिसको हम छोटा हाथी कहते हैं, बड़े ट्रक्स और ट्रैक्टर्स अंदर गलियों में नहीं घुस सकते। और ये मैं आपको बता दूं, पटना का वो इलाका है जो आप दो अच्छे लोकेलिटीज के बीच में ये बसा हुआ एक ऐसा इलाका है जो उतना डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, और एक जमाने में बहुत गंदगी यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बहुत क्योटिक है। वो पटना को, वो पॉश पटना नहीं है। हर शहर का एक बड़ा पॉश इलाका होता है और एक बहुत डिप्रेस्ड इलाका होता है। वो हमारे भारत की रियलिटी है, सिर्फ बिहार में ऐसा है ऐसी बात नहीं, हर अहमदाबाद के अंदर में भी है और हर जगह ऐसा है। तो ये वैसे एक इलाके का केस स्टडी मैंने करने की कोशिश की थी। और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इसके जाने के बाद ये बच्चा, छोटा बच्चा, ये खुद से सफाई करता है सड़क पे। और जब मैंने इसको रोक करके इससे पूछा कि भाई ये कितना सक्सेसफुल है, और तुम इतना गाना बजाते हुए जो 2 बार 3 बार ये कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, तो उसने मुझे बताया कि इसने सबसे ज्यादा ये जो गाना बजाने का जो असर हुआ है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज जस्ट सोशल इनोवेशन। तो गाना बजाने का जो असर हुआ है वो छोटे बच्चों पे हुआ है। और जब मैं खड़ा था उसी समय, यू विल बी सरप्राइज कि एक छोटा बच्चा, बहुत 4 साल 5 साल का बच्चा, अपनी एक छोटी सी बाल्टी में कचरा लेके आ गया। उसे नहीं मालूम था, उसे लगा कि मैं ट्रक चलाता हूं। उसने कहा, अंकल इस कचरे को इसमें डाल दो। सो हाउ बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ these अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सोसाइटी, ऑफ कल्चर, ऑफ देयर लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि वो सफाई में नहीं रहना चाहते। जो गलियों में रहते हैं उनको सफाई की जरूरत नहीं है या सेंस नहीं है, उनमें भी है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी को, पॉलिसी को, कन्वीनियंस को, सुविधाओं को, इन सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा और नए तरीके से, क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, और तब उसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। और उसके बाद से अगर आप रिजल्ट देखें तो देख लीजिए, सड़क पे आपको कहीं पे कचरे का एक तिनका नहीं मिलेगा। एक और फोटो है मेरे पास, जबकि ये बहुत डिप्रेस्ड इलाका है पटना का, वो पॉश इलाका नहीं, मैं फिर बता दूं, देखने से समझ में आ रहा होगा। और इसीलिए खास तौर पे मैं इस इलाके में जाके मैंने इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। तो पूरी सड़क पे आपको कहीं गंदगी नहीं दिखेगी। और जब ये गाड़ी चली जाती है तो बिहेवियरल चेंज यही आया है कि लोग पॉलीथीन में, काले पॉलीथीन में अपना कचरा डाल के किनारे सड़क के रख लेते हैं, ताकि एक जिनका कचरा छूट गया फिर वो सेकेंड राउंड आता है तो उठा के चला जाता है, वो सड़क पे फेंकते नहीं है। तो ये एक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सारी चीज़ों को मिलाने से बिहेवियरल चेंज कैसे आता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग ऑलमोस्ट अपने कंक्लूडिंग पार्ट पे हैं। अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन की चर्चा करेंगे कि कैसे डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी माहौल खड़ा करता है। तो मैं 3 चीज़ों की बात करना चाहूँगा, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। इन तीनों को हमको याद करना, समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास एक दूसरे किस्म का साइंटिफिक अप्रोच है, जो कि हमें एक साइंटिफिक मेथड से, टेक्नोलॉजिकल मेथड से, इंजीनियरिंग जो है वो टेक्नोलॉजिकल मेथड से हमारी समस्याओं को सुलझाने का की ताकत, की कैपेबिलिटी हमको देता है। इनोवेशन जो है वो एक समस्या के समाधान के लिए नए नजरिए, नया दृष्टिकोण देता है हमें। और डिजाइन जो है ये फाइनल जब आप डिलीवर करते हैं, जब लोगों के बीच में लेके जाते हैं, तो उसको पैकेज करके एक इस फॉर्म में लेके जाता है ताकि लोग उसको कंप्लीट हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसको हम जो आप बीजी बार एसटीडीपी ज्वाइन कर दी थी। Participants are requested to mute your mic. Maulik Patel sir, I think. आपकी माइक ऑन है, जरा 2 मिनट बंद कर लीजिए, मैं कंक्लूड कर। तो अब इसके लिए जो हम एक अप्रोच की बात करते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो कि हम डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान में रखते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट में मिला के हम फिर एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। इसमें उसका एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं एम्पैथाइज, डिज़ाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट। यानी कि सबसे पहले हमको समस्याओं को समझना पड़ेगा,
दूसरे स्तर पे हमको समस्याओं को डिफाइन करना पड़ेगा, तीसरे पे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब उसके बाद हम उसकी प्रोटोटाइपिंग करेंगे कि ये समस्या को सुलझाने के लिए इस टाइप के प्रोटोटाइप हम निर्माण कर सकते हैं। प्रोटोटाइप को हम पहले टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पूरे साइकिल को फॉलो करके तभी हम किसी समस्या के समाधान की तरफ जा पाते हैं। और फाइनली जब हम इस नज़रिए से देखते हैं तो क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं। अब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ऑटोमोबाइल डिज़ाइन का, जो कि बेस्ड है साइंस के एक प्रिंसिपल पे जिसको बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स इज बेसिकली अ साइंस which is about the application of data about the functioning of biological systems, कि बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके, उसका ग्रोथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का कैसे होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके फॉर्म को ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल के डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो वो उसका पूरा डिटेलिंग ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और तब उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करके अगर 2040 के लिए यानी फ्यूचर के लिए अगर आपको एक ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करना हो, व्हीकल डिज़ाइन करना हो, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। तो इस किस्म से ये हमारे स्टूडेंट्स का काम है। हमारे फैकल्टी कलीग प्रोफेसर बालाजी रंगराजन के उनके मेंटरशिप में जो स्टूडेंट्स ने काम किया था, रवि शर्मा ने, उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इस किस्म से साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्थेटिक्स, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें एक इंटरडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म पे, पेन पे आके मिलती हैं, सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करती हैं। और ये एक बहुत ही वो टेक्नोलॉजी और ये इनोवेशन, यहाँ पे कोई बहुत विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। ये एक पीठ पे जो बोरी को लाद करके ले जाते हैं हमारे जो मजदूर भाई होते हैं, तो आमतौर पे वो सीधा पीठ पे लाद लेते हैं और उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, वजन उठाना, उनके जो हड्डियों पे जो असर पड़ता है वगैरह वगैरह। इसको कन्वीनियंट कैसे बना सकें, कैसे हम आसान बना सकें उनके लिए लोड बेयरिंग को, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोडक्ट डिज़ाइन है। अब आप इसमें टेक्नोलॉजी देखते हैं, आप इसमें इनोवेशन देखते हैं, आप इसमें डिज़ाइन देखते हैं, आप क्या देखते हैं? ये इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, और ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सोल्यूशन है हमारा आज के समय में, वो सोल्यूशन मल्टी डायमेंशनल है, इंटरडिसिप्लिनरी है, और एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ही हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे अपने जो आपस की जो बाउंड्रीज है डिसिप्लिन को, उसको ब्रेक करें, एक दूसरे विषयों के बारे में भी जानें, दूसरे विषयों को भी समझें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स थियरीज, ईच अदर्स कॉन्सेप्ट्स, ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स and weaknesses, and then try to mingle them together so that we can create something which is really innovative, which is really useful for the society, for the humanity at large. So thank you very much for being so patient and kind, and thanks for your invitation. I'm once again very thankful to your institution for having extended this invitation to me. और इसके साथ मैं conclude करता हूँ. Thank you very much. अब आपके अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। अगर पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चंस हैं तो दे मे आस्क। Yes, absolutely. Sir, participants are very happy in our even group and chat. They are writing that it was excellent session, and session was quite informative and innovative in this regard, because interdisciplinary education is session we are attending such session very first time. We have never attended any session on such title. And जो सर आपने रियल लाइफ की बातें की, जो चूल्हा चैलेंज के बारे में आपने बात की, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बारे में बताया आपने, साइलोस जो दीवारें हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में, सर आई होप न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम काफ़ी सारा दीवारों को हटा पाएंगे और हम और आगे बढ़ पाएंगे। और सर आपने जो टेक्नोलॉजिकल सोशल चैलेंजेस के बारे में बताया, वो इंजीनियर्स को, हर इंजीनियर्स को काफ़ी सोचने के लिए बड़ी अहम बात है, तो उसके लिए भी हम आपको थैंक्स कहते हैं। अब मैं अपने कलीग बीएम पटेल सर को सेशन कंक्लूड करने के लिए इनवाइट करता हूं। थैंक यू कुरैशी सर, थैंक यू मीर बोले सर फॉर दिस एक्सेलेंट वंडरफुल सेशन। रियली वी एंजॉयड दिस सेशन। और इसके अंदर जो आपने बताया सर कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन,
तो उसके अंदर भी यहाँ पर हमारी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पालमपुर में जैसे गुजरात में चल रही है पॉलिसी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP, जी तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो जो आपने बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी बताए रियल, और एक छोटे से इनोवेशन के बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा ही मैं एक आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने जो एक सॉल्यूशन बनाया है और उसने पेटेंट भी करवाई है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा। और बीच में हमारे पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन हो तो भी, कोई क्वेश्चन हो तो पार्टिसिपेंट आप जरूर बताइएगा। हम सर से जितना भी बात करेंगे उतना कुछ नया जानने को मिलेगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। एक स्मार्ट वाटर अलार्म टॉप। यस, स्मार्ट वाटर अलार्म टैप। ये हमारे 4th सेम मैकेनिकल का स्टूडेंट है। इसके माइंड में ऐसा है कि हमारे घर पे दरोई का पानी आता है, मतलब म्यूनिसिपालिटी का। को कैसे उस बच्चे ने काम किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो आता है सुबह जैसे 5 बजे या 6 बजे आता है, कोई सोसाइटी में आता है दोपहर 10 बजे 11 बजे, तो हमें पता नहीं चलता कि वो पानी आया और चला भी गया। तो जनरली क्या करते हैं पब्लिक की, उस नल को ओपन खुला रख देते, जैसे पानी आएगा तो वो पानी की आवाज से पता चलेगा। अगर घर पे हो तो आप नल पे पता चल जाएगा, नहीं तो पानी वेस्ट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया बच्चे ने कि ये पानी जब आता है म्यूनिसिपालिटी का हमारे घर पे तो हमें पता चलना चाहिए कि पानी आ गया। तो पहले बच्चे ने स्टार्ट किया काम करना इलेक्ट्रिक सर्किट से, इलेक्ट्रिकल बजर लगा देते, लेकिन ऐसा तो बजर है ही, लेकिन उसमें अंदर प्रॉब्लम आता है कोई जगह पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं दे पाए, उसकी रिलायबिलिटी नहीं आती। बाद में उसी बच्चे ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है मैकेनिकल पूरा टैप। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं होंगे, सिंपली हमें इस नल को, ये जो टैप है उसको हमारा जो नॉर्मल टैप है उसकी जगह पर लगा देना है, और उसके अंदर 3 मोड हो गए, ऑन मोड, ऑफ मोड एंड अलार्म मोड। जैसे आप अलार्म मोड पे रखोगे, पानी जितने भी बजे आएगा, सुबह 5 बजे आएगा तो भी आपका अलार्म बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई पानी आ गया है। फिर उसका आपको नॉर्मल जैसे हम टैप यूज करते हैं वैसे ही ऑन करके आप पानी का बहुत बढ़िया। तो आप ऑफ मोड पे रख दीजिए, तो ऑफ मोड पे रखोगे तो भी आपको अलार्म नहीं बजेगा। तो एक मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया, जैसे आप मिहिर सर ने बताया कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बच्चे को एक बार लगा देते हैं ना उसके पीछे, तो बच्चा उसके पीछे ही लगा जाता है। तो 6 महीने के अंदर एक अच्छा छोटा प्रोडक्ट उसने बनाया, उस पर अभी भी काम चल रहा है। और अगर कोई पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन हो तो शेयर कीजिए सर के साथ। बिल्कुल। चलिए अभी 10 मिनट टाइम है, थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाइए। यस, थे हमारे पास जो भी दिमाग में आपके सवाल आ रहे हो, डिजाइन से रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें जो है वापस आपस में असल में बहुत जुड़ी हुई हैं। तो अब जैसे ये प्रोडक्ट, तो उसने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। और इस पे अगर आप देखने जाएं तो कई तरीके के काम इस पे लोगों ने किए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले भी हमने देखे हैं। मुझे याद है दिल्ली में जहाँ मेरा बेटा रहता है, वहाँ उसके अपार्टमेंट में वो अजब सी एक आवाज़ आती थी, इतनी भयानक आवाज़ आती थी जब वो पानी चालू होता है, तो इतनी भयानक आवाज़ आती थी कि उसकी वजह से आप मतलब नींद, कितनी भी गहरी नींद में वो भागते थे और जाकर के पानी चालू करते थे और बंद करते थे, और वो उसमें से मतलब बोल के उसमें से कुछ आवाज़ आती थी। तो मुझे हंसी भी आती थी कि इस किस्म की आवाज़ क्यों इतनी डरावनी उन लोगों ने इसके अंदर में डाली है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक और इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन अब ये एक लेवल पे प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कितना इंटरेस्टिंग था कि अगर बिजली गायब हो तो
तो दूसरा सवाल ये है कि बिजली गायब हो तो फिर सप्लाई बिजली के नहीं रहने पे होती है नहीं होती, ये भी देखना पड़ेगा हमको। हो सकता है म्यूनिसिपल एरिया जहाँ से वो पंप होकर के पानी आ रहा हो वहाँ पे सप्लाई हो, लेकिन घरों में जहाँ पे वो आ रहा हो वहाँ पे सप्लाई नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं तो किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो पहला स्टेज है कि वो जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन की किस किस्म से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रॉब्लम को सिर्फ टेक्नोलॉजी के नज़रिए से आइडेंटिफाई ना करके मेरा सजेशन ये होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, आप उसके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान रख करके उस सॉल्यूशन को तैयार करना पड़ेगा। और एक जैसे हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत कुशल नेतृत्व में आज के समय में हमारा देश है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, जितना एनकरेज करते हैं वो नई टेक्नोलॉजी के लिए और इनोवेशन के लिए, वो तो शायद पहली बार हो रहा है भारत में। और लड़के जो नई जनरेशन है बहुत उत्साहित है उसको लेकर के, तो उन्होंने भी इस बात की तरफ, इनोवेशन की तरफ बहुत जोर दिया है। और इनोवेशन की जब आप बात करें तो आप इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सोशल इनोवेशन, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा रख के देखें। अब ये जब आपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बना लिया, अब नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको सोचना है तो आपको उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, बिकॉज एज टेक्नोलॉजिस्ट योर जॉब इज नॉट गोइंग टू एंड देयर। आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है, आपको खुद को एक एंटरप्रेन्योर बना करके उसको एक प्रोडक्ट में डेवलप करके इस लेवल पे लेके जाना है कि वो आप मार्केट में लेके जाएं और लोग उसको एक हैंडी प्रोडक्ट के तौर पे, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट के तौर पे, ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे जिसको कहीं भी लगाया जा सके बहुत आसानी से, बिना ज़्यादा पैसे के खर्च के, वैसा अगर किया जा सके तो ये आपका सक्सेस होगा। और इसके लिए आपको सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो सोल्यूशन को आप इन सारे नज़रिए से भी देखें, तभी आप एक सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट या टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर आप हो सकते हैं। सो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनना है, यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ इनोवेटर, टेक्नोलॉजी इनोवेटर एंड देन एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर। इस नज़रिए से भी आप देखें, ये सुझाव है मेरा। यस सर, सही बात आपने बताया। कोई सी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एक और सर आपसे बात करनी थी कि आपकी इंस्टीट्यूट NID के अंदर अगर हमारे बच्चों को ये जो आपने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से जर्नी स्टार्ट होती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जाती है, तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच करना होता है तो उसका कुछ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम या वर्कशॉप, ऐसा कुछ वेकेशन में ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है आपके इंस्टीट्यूट में जिसमें हमारे बच्चे जुड़ पाए? बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम समर वर्कशॉप है और भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप NID की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं और उसमें है ऐसा कि करीब करीब 60-70 फैकल्टी हैं और अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड में अपने अपने काम करते हैं, वो शेयर करते रहते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वहाँ से, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप कोई खास वर्कशॉप चाहें तो उसके लिए लिख भी सकते हैं कि NID को कि इस पे हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को सेंसिटाइज करें या जो भी, आप तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, निश्चित रूप से देखते हैं उसको। सर जरूर। तो आज जब लगता है कि का सिलसिला खत्म हो जाए, सारी चीज़ें सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो आप अपने स्टूडेंट्स को लेके विजिट के लिए भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर, जरूर जरूर, हम एक बार जरूर आपके इंस्टीट्यूट की विजिट करेंगे। इसमें आपने जो फोटोग्राफ्स बताए, रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसका सॉल्यूशन जो बताए, वो हम आके वहां पर देख पाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जरूर जरूर आए। और ये तो जितना ज़्यादा बच्चों का एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप वहाँ भी लाएं, आप उनको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी लेके जाएं, आप उनको दूसरे जो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, पॉलिसी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक पॉलिसीज़ में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की पॉलिसी क्या है इस पर भी बच्चों को बताइए। इसके बारे में बच्चों को बताने की ज़रूरत है ताकि बच्चे समझे कि वो करके तो बैठ जाएगा लेकिन वो फिर वो समाज में इस्तेमाल कहाँ होगा। यस, सही है। गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए क्या सपोर्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके साथ अलाइन करके, मिल करके हम क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है आजकल, सिर्फ आपके बच्चों को नहीं, सबों को, अक्रॉस।
आई एम श्योर बहुत Yes. ब्राइट बच्चे हैं आपके और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गाइडेंस आप लोग बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं। और पूरे देश में हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जितने चैलेंजेस हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हर जगह चैलेंज है और हर जगह एक अपॉर्चुनिटी है। तो चैलेंज के बीच में अपॉर्चुनिटी ढूंढना ये 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 सीखना है। और मुझे लगता है कि शायद गुजरात से बेहतर कोई नहीं समझता इस बात को कि चैलेंज में अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल लेना। तो ये तो हमारे 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 संस्कारों में है। तो हमको पूरे देश में घूम के देखना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी डाइवर्स प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने दायरे को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ हम अपने इन एंड अराउंड नहीं देखें बल्कि एक बड़े दायरे पे देखें कि हर जगह की अलग अलग क्या खास समस्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत लेवल पे काम किया जा सकता है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। यस सर, सही बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। इसके अंदर आपने हमें ये भी बता दिया कि इनोवेशन के जुड़ के हम नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चों को इनोवेशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और हम फ्यूचर्स में भी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, sir, for your guidance. Thank you very much. टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा 1 बजे, तो हम 12:45 को फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।